Okay, dear students, good morning. How are you all? Take care of yourself, everyone. Welcome to E-Class of Accounts. Today, one more question. You might be feeling how many more. So this will be last. आप इसके बाद practice करेंगे. All illustrations, all sums which are included, not which are not included. So that if any query, please put me in open house. I will try my level best to solve it. Even if you want to come and solve it with me, please let me know in open house. Here, question number 16 is there. Dharam Metals Limited of Jamnagar has issued 8 lakh equity shares of 10 each at a premium of 30. And उसका calculations दिया है. Let us go and put it this way. 8 lakhs actual offered है. मैं यही बता रही हूँ आपको. You need to make. And in that case, here very clearly it is said this is capital plus premium is of rupees 30 per share. So ready है हमारा. Move करेंगे on application. So simple. 13 rupees है but including premium of 10. So अकल की चीज है, कैपिटल कितनी हो जाएगी 3. सेम मैनर अलॉटमेंट ब्रेकअप पहले ही कर देना. 23 including premium of 20. So automatically 3 becomes the capital. Final call of rupees 4. This way capital के 10 rupees and premium के 30 rupees company collect कर रही है. Now 8 lakh shares were allotted by company in all, where one shareholder Vipul, who was allotted 1500 shares, could not pay allotment and hence his shares were forfeited by company after allotment. Okay, this is highlight of the question. Okay, क्या highlight है? Part called को partly called up shares are forfeited. Okay, partly. What happens? Investor is not able to pay 1500 shares pay allotment money and company immediately forfeits the shares at the stage of, कौन सी स्टेज है? At the stage of allotment. अभी तक वैल्यू कितनी है शेयर की? 6 रुपए. 4 तो आए भी नहीं, इधर ही कंपनी काट देती है उसको, मीन्स हटा देती है. यहाँ पे 20 रुपीज का प्रीमियम भी नहीं हुआ, कैपिटल भी नहीं. At this stage company forfeits, and not only this much, company reissues all 1500 shares before final call. कॉल मंगाने से पहले इसी स्टेज पे रीइश्यू भी हो जाता है. रीइश्यू एट दिस स्टेज एट रुपीज 5 एट दिस स्टेज ओनली. सी आपका चार्ट एकदम सुपर्ब होना चाहिए. ओके, नाउ आफ्टर दिस more things. Hema, who was allotted 500 shares, could not pay final call. अब दूसरी जागी है. हेमा could not pay 500 on final call. She is not able to pay. No problem. Hence her shares were forfeited at this stage. वो तो complete stage है, final stage पे. And reissued. These shares were reissued at this stage at maximum discount. Means share equal to share forfeiture. Amount equal to share forfeiture. Maximum discount. We are supposed to pass journal entries for it. So many journal entries. You can check out. 2, 2, 2. Normally 6 होते हैं. 6, 7, 8, 9, 10. So many entries will be. 11 total entries will be there. Let us go for it. Pass करें. Start करें question को. First entry. और पहले तो presentation. वही Dharma Metals Limited. So journal entries of Dharma or Dharam Limited. Okay, and then date लिखिए, serial number लिखिए, particulars LF, debit amount in rupees, credit amount in rupees. No formality is this to be completed. So go for first one, first entry. क्या entry pass करेंगे बोलो? What will be the first entry? Application. Yes, application amount will be received. Go for it. Entry pass करें. Bank account debit. शॉर्ट में लिख रहे हैं, वैसे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखना चाहिए, हम शॉर्ट में एप्लीकेशन. एवरी वन ऑफ बाय दिस टाइम वी नो 8 लाख शेयर्स है,
कंपनी 8 लाख को ही कंट्रीब्यूट करा रही है, 8 लाख एंड एप्लीकेशन कितना है 13 रुपीज का, 3 रुपीज का कैपिटल, चार्ट याद है, 3 रुपीज का कैपिटल, 10 रुपीज का प्रीमियम, सब पे कर रहे थे 3। चलो डाल देते हैं ये अमाउंट थोड़ा डिफिकल्ट है, मीन्स ह्यूज अमाउंट है, देखना 1 करोड़ 4 लाख का है, तो 104 lakhs, ओके, 4 के बाद 5 0, 104 00 000 ऐसा, ओके। सो दिस अमाउंट मिला है, बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, ओके, बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड। लेट अस गो फॉर सेकेंड, एप्लीकेशन अमाउंट को ट्रांसफर करें, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि कैपिटल का पैसा कैपिटल में जाएगा, प्रीमियम का पैसा प्रीमियम में, 3 रुपीज का कैपिटल है, 3 रुपीज का, सो 8 लाख इंटू 3 कैपिटल में, और बाकी 10 रुपीज का प्रीमियम है, 80 लाख रुपीज का क्या हो जाएगा हमारा प्रीमियम, तो जिसका जो है उसी में ही ट्रांसफर करेंगे, 24 lakhs and 80 lakhs comes to 1 crore 4 lakhs, okay, being application amount transferred to share capital and security premium respectively। हो गया स्टेज 1 कंप्लीट। अब अलॉटमेंट भी शांति से डाल दें। अब कंपनी अलॉट्स टू शेयर्स, तो डिमांड करिए पैसे, एंट्री पास करें, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, देखो क्या क्या मांगा रही है अलॉटमेंट पे, 3 रुपीज ऑफ कैपिटल, 20 रुपीज ऑफ प्रीमियम, और फिर इस पे प्रोसेस भी कर रही है। सो बी केयरफुल, पहले शांति से पैसे मंगाएंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, डिमांड एंड देन वी विल रिसीव। सो लेट अस डिमांड हियर 8 lakhs पे कैपिटल 3 rupees, 8 lakhs into 3, that comes to 2 lakh for 24 lakhs of capital, okay, and प्रीमियम का 8 lakhs into 20, 8 lakhs into 20, okay, 1 crore 60 lakhs। अमाउंट्स थोड़े इसके टेढ़े हैं, 184, 1 crore 84 lakhs टोटल अलॉटमेंट का हो गया सेटलमेंट। बट नहीं, क्या हुआ, यहां पे विपुल ने 5 and 1500 पे पैसे नहीं दिए, इसके अलावा सबने दे दिए, तो पास करेंगे ना, एंट्री पास कर देते हैं, जो मिल गया। बैंक अकाउंट डेबिट नहीं मिला, कॉलन अरियर्स अकाउंट डेबिट नहीं, तो डायरेक्ट एंट्री भी पास कर सकते हैं। 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ओके, सो चलो पास करेंगे। शेयर अलॉटमेंट के टोटल 1 crore 84 lakhs है टोटल। आउट ऑफ दिस बी केयरफुल, बहुत सिंपल है, 1500 into 23 rupees नॉट रिसीव्ड। अलॉटमेंट के पूरे 23 रुपए इससे नहीं मिले हैं, तो इससे कितने रुपीज नहीं मिले, 34,500 सिर्फ नहीं मिला है, बाकी 183,65,500 आर रिसीव्ड, ओके, 1 crore 83,65,500 आर रिसीव्ड, ओके, अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब यहां पे ट्विस्ट है, एट दिस स्टेज इटसेल्फ कंपनी आगे बढ़ना ही नहीं चाहती है, और यहां पे शेयर को क्या कर देती है, फॉरफिट। शेयर इशूड एट अ प्रीमियम, प्रीमियम भी नहीं मिला है, और इसी स्टेज पे फॉरफिट कर रही है। ध्यान से, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओके, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला है इसलिए वो भी डेबिट टू, जो मिल गया फॉरफीचर में डालेंगे, शेयर फॉरफीचर, जो नहीं मिला या टू शेयर अलॉटमेंट, या कॉलन अरियर्स, जैसा आप चाहें लिख सकते हैं। इन दिस केस केयरफुली आई एम शोइंग यू, प्लीज अंडरस्टैंड। आज के दिन तक शेयर की वैल्यू 6, कॉल्ड अप पेड अप फेस वैल्यू, 4 रुपए मंगाए नहीं है, तो आज 6 रुपए का ही शेयर है, और इस पे इसने 20 रुपए का प्रीमियम नहीं दिया है। जो प्रीमियम दे दिया है उसको भूल जाएंगे, प्लीज फॉरगेट द प्रीमियम विच इज रिसीव्ड, बट व्हाट इज नॉट रिसीव्ड ओनली विल बी shown as the amount in arrears, okay, and
हियर अलॉटमेंट पे पैसे जो नहीं मिले हैं वो यहाँ पे आएंगे. डिफरेंस अमाउंट हियर यू कैन राइट. अक्कल की चीज है. कैपिटल के 3 रुपए मिले हैं. 15 into 3 यू विल शो देयर. प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड विल बी कंप्लीटली इग्नोर्ड. एट दिस स्टेज आप देखो तो उसने एप्लीकेशन के 3 रुपए और ये दे दिया है. जो प्रीमियम मिलता है उसको भूल जाएंगे. तो एक्चुअली हमको मिला कितना. फॉरफीचर में कितना जाएगा इसका. फॉरफीचर में जाएगा 3 रुपीज. 15 into 3 4,500. जो मिल गया प्रीमियम भूल जाने का. जो नहीं मिला उसको कैपिटल के साथ डेबिट करने का. दैट इज द टर्निंग पॉइंट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. कंपनी ने शेयर फॉरफिट ही नहीं किए. एक ट्विस्ट भी है कि इधर ही री इश्यू कर दिए 5 रुपए पे. तो एंट्री पास करें. बैंक अकाउंट डेबिट. देखो आज के दिन बैंक वैल्यू कितनी है शेयर की. 3 + 3 6. लेकिन कंपनी री इश्यू कर रही है 5 में. तो 1 रुपए का लॉस है. वो फॉरफीचर से लेंगे तो लिखना पड़ेगा फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ओके गो फॉर इट वेरी केयरफुली. 1500 into 6 is the value of share. 9,000. बैंक से सिर्फ 5 रुपीज ले रहे हैं. हम इन्वेस्टर से 5 रुपीज ले रहे हैं. 7,500 राइट. लेकिन 1 रुपए का जो लॉस है वो फॉरफीचर में से ले लेंगे 1500. नाउ फॉरफीचर हुआ कितना और यूज कितना. We can see here there is a forfeiture profit of rupees 3,000. 3,000 का प्रॉफिट है अब तक हमारे पास ये फॉरफीचर का. ओके आगे बढ़े. नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे. यहां पे ये बात पूरी हो गई. अब देखो क्या है. ये स्टेज पूरी हो गई. अब क्या होगा. फाइनल कॉल का 4 रुपए डिमांड कर लो. 7th एंट्री शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. हमको पूरे कितने हैं 8 लाख शेयर्स है क्योंकि वो भी री इश्यू हो गए. पूरे 8 लाख हैं. कंपनी डिमांड फ्रॉम ऑल 4 रुपीज. Okay, so 32 lakhs. 32 lakhs being final call money demanded. Okay, now डिमांड तो कर लिया लेकिन क्या हो गया. फिर से एक इन्वेस्टर है. कौन है. हेमा इज नॉट एबल टू पे ऑन 500. तो रिसीव करते टाइम when the amount is received on these we will have to be careful. Entry here if we pass final call money के लिए. सो बैंक अकाउंट जो मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट. नहीं मिला है कॉल इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट. फाइनल कॉल टोटल तो 32 lakhs का है. वी नो वेरी वेल. बट हेमा के 500 शेयर्स पे हमको 4 रुपए नहीं मिलेंगे. 500 into 4 will not be received. So 2,000 is not received. Remaining 31,98,000 is received. Okay, so this shows our final call amount received. This will be entry number B. Final call amount received. So 8. Now after this we can go for next entry number 9. क्या कर रहे हैं इधर हेमा के भी अभी क्या कर रहे हैं हम. क्या करें फॉरफिट एंड री इशू. सो पहले हेमा के फॉरफिट कर दें शेयर्स को. हेमा के शेयर्स को फॉरफिट करने के लिए एंट्री पास करेंगे शेयर कैपिटल क्योंकि उसने प्रीमियम का तो सब भर दिया है. अकाउंट डेबिट टू अमाउंट रिसीव टू अमाउंट नॉट रिसीव और फाइनल कॉल अकाउंट. उसने जितने दिए उतने जितने नहीं दिए. तो यहाँ पे हम अभी तो पूरी वैल्यू हो गई है 500 into 10. और नॉट रिसीव तो यही है. नॉट रिसीव कितने नहीं है. फाइनल कॉल का कॉल इन अरियर्स और जो रिसीव्ड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली डिफरेंस 3,000. ओके नॉट अभी यहां पे तो बात पूरी नहीं हुई. मैक्सिमम डिस्काउंट विच इज इक्वल टू फॉरफीचर. यहां पे इस शेयर्स की वजह से कितना फॉरफीचर क्रिएट हुआ 3,000.
कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट पे ये शेयर्स रीलॉन्च कर दे रही है. रीलॉन्च इट और री इशू इट. एंट्री पास करेंगे. बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे मिलेंगे. शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. देखो हमको टोटल 5,000 मिलने चाहिए, उसमें से हम 3,000 का तो इनको डिस्काउंट दे रहे हैं. मीन्स फोरफीचर जितने पूरा तो इन्वेस्टर से कितने मिलेंगे. ऑटोमेटिकली डिफरेंस इन्वेस्टर से हम 2,000 रुपए लेंगे. फोरफीचर में इसके तो कुछ नहीं बचा है. एक लास्ट एंट्री, ये जो पहले वाला था इधर हमारे पास 4,500 माइनस 15, 3,000 का फॉरफीचर इसका पड़ा है. तो उस शेयर्स का फॉरफीचर यहाँ पे सीआर में तभी भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी किसी भी एंड ऑफ क्वेश्चन और इमीडिएटली आफ्टर एंट्री टू सीआर. ये 3,000 रुपीज ट्रांसफर. तो ये ध्यान देना है, मैक्सिमम होगा तो उसी से रिलेटेड जो प्रॉफिट हुआ है उसी को मैक्सिमम डिस्काउंट. ये पहले वाले शेयर्स का प्रॉफिट है. कैपिटल प्रॉफिट ट्रांसफर टू सीआर बिकॉज दो शेयर्स वर रीइश्यूड एट 15 लॉस. 4,500 प्रॉफिट हुआ था, 1,500 रीइश्यू में लॉस हो गया था. एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर टू सीआर पहले वाले शेयर्स का. दिस कंप्लीट्स अवर क्वेश्चन. One more formality is there to total up, which you can do very easily. So this way your sum gets over. Now it is the time for an homework. Please see that all of you do very sincerely. Here I am telling you, first do illustration number 14, which is given on page 40 of textbook. Okay, page 40 textbook, illustration 14. Then practice out question number 18 of textbook also. If any query, please ask in open house. 18 वाला सिर्फ 4 features के लिए practice है. Please do that. If any query, you can ask me in open house. Okay. Now in next session we will start with the next chapter, part 2, chapter 2, debentures. Rest all okay. Take care. Bye-bye.